Hello student, in last lecture we have seen what is the meaning of organizations. तो organization का मतलब होता है कि जहाँ पे more than two peoples collecting together and work for the one goal, that is called the organizations. There is the organizations is a collections of peoples together in coordinated and structured fashion to achieve one or more goal, that is called organizations. तो हमने 6 M भी देखे थे, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मार्केट एंड मनी। इस 6 M का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, मैन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैन इन ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मशीन्स to converting a raw material into the finished good, and what is the actual value of materials or quality of materials, what will be the impact on that the product. So that will be the decided by using the materials. Methods, it is the most important things to converting a raw material into the finished goods. There is the number of techniques: kaizen system, kanban system, TPM, Six Sigma, lean manufacturing. There are the number of techniques, that is the techniques to reduce the wastage, reductions of cost, labor cost, operating cost, inventory cost, investment. Whenever we reduce our wastage is gone, so by using this technique we can reduce this type of cost. Market, so market is the most important also. Suppose we produce a goods and there is a no market, so it is not a good for industry or good for the us to achieving a goal. So market is the most important factors, and money, that the money is also necessary to grow up the industry, or whenever we have to grow more than two plants or more than the organizations, so we have to invest the money on machines, on people, on infrastructure, and whatever we applying methods. So training training is the most important part in the growing the organizations. If there is a uh, certain peoples are skilled and we did not give a continuous to a training, so our industry is not improving day to day. So money is also important in the various factors. So these are the 6M, and we also seen the features and characteristic of managements are used in organizations. So today we are going to learn about the steps in process of organizations. So generally इंडस्ट्री में प्रोसेस क्या क्या होती है, तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो हमें आइडेंटिफाई करना है और वर्क को डिवाइड करना है। तो द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कमेंस विथ एन आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एन एक्सटेंट and the amount of work that need to be done, and dividing this into the manageable activities. तो हमें जनरली क्या करना है कि हमें वर्क का आइडेंटिफिकेशंस करना है और वर्क को डिवाइड करना है। मान लो वी हैव अ ग्राइंडिंग मशीन्स, सो एवरी पार्ट नीड अ सेमी फिनिश ग्राइंडिंग एंड फिनिश ग्राइंडिंग, मीन्स रफ ग्राइंडिंग एंड फाइनल ग्राइंडिंग। सो इट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम क्या करेंगे, सेमी फिनिश ग्राइंडिंग का एक सेक्शन अलग रखेंगे और फाइनल ग्राइंडिंग का एक सेक्शन अलग रखेंगे। First of all, we identify the process, or we identify by using the process where we have to allocate the rough grinding process, where we have to allocate the final grinding process. आइडेंटिफिकेशंस हो गया, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया दोनों डिपार्टमेंट को भी। सो द आइडिया behind this is to eliminate the duplication and share the burden of work. तो इससे क्या होगा कि हमें ग्राइंडिंग ही प्रोसेस करनी है, लेकिन हम फाइनल ग्राइंडिंग स्टेज पे कभी रफ ग्राइंडिंग करते हैं, तो इट्स टू मच चांसेस टू मिक्स अप द मटेरियल्स, टू issues of qualities. So and whatever burden on the final grinding stations, so it will be divided by using this टू सेक्शंस। सो उसमें हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो हम प्रोडक्ट वाइज हमारा
जो एक्टिविटीज होता है या डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं. So that is the first process, identifications and division of work. Then second one is departmentalizations. Now as the work has been redefined as a number of manageable activities, हमने क्या किया है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो मैनेजेबल एक्टिविटीज है उनको हमने रिडिफाइन कर दिया. एक्टिविटी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड बेसिस. हमारे पास जो भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है उसको प्री डिफाइंड प्रोसेस में हमने कन्वर्ट किया. उसके बाद दिस बेसिस डिसाइडेड व्हाट एक्टिविटी आर सिमिलर टू ईच अदर. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी सिमिलर है. जैसे कि मान लो हमारा प्लानिंग सेक्शन आता है, जैसे कि रफ ग्राइंडिंग के लिए भी वही प्लानिंग करना पड़ता है और फाइनल ग्राइंडिंग के लिए भी वही प्लानिंग करना पड़ता है. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमें एक सेक्शन वाइज और एक डिपार्टमेंटल वाइज सेपरेट ही बनानी है, लेकिन उस एक्टिविटी को, सिमिलर एक्टिविटी को कोई एक पर्टिकुलर बंदा परफॉर्म करेगा. तो ऑल द सिमिलर एक्टिविटी आर असाइन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. मीन्स मानो प्लानिंग डिपार्टमेंट वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. ऑल इन ऑल a number of department are defined that are concerned with their own set of activities. मान लो हमें प्लानिंग करना है कि हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड करना है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, हर एक स्टेशन का प्लानिंग उस सुपरवाइजर को करके देगा. दैट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशंस. Assignment of duty. The next step involve distributions of work among the employees in organizations. Means हमें वर्कर्स को या ऑपरेटर को या सुपरवाइजर को उनका वर्क असाइन करके देना है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर अ फंक्शनिंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज गिवन टू एन इंडिविजुअल. तो हमें क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन करना है. जैसे कि मानो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उनको प्रोडक्शन का ही काम करना है. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो सर्विस डिपार्टमेंट आता है तो उस सर्विस डिपार्टमेंट को रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो रिजॉल्व करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है. जो 16 मेजर लॉसेस है तो वो 16 मेजर लॉसेस हम रिड्यूस करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हेल्प लेते हैं. उसके बाद आता है टूलिंग लॉस, ये भी 16 मेजर लॉसेस में ही आएगा. सेटिंग लॉस आएगा, ऑपरेटर लॉस आएगा, रॉ मटेरियल लॉस आएगा, उसके बाद जिग एंड फिक्चर्स का लॉस आएगा. ये डिफरेंट टाइप ऑफ 16 लॉसेस है. इफ एनीवन नीड्स टू बी लॉसेस देन आई विल शेयर टू हिम. देन उसके बाद टूलिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद पीपीसी डिपार्टमेंट है, उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है. ये सब ऑर्डिनेटिंग और सब सर्विस डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं. तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सो हम उसको मेंशन करेंगे. फर्दर जॉब आर अलोकेटेड टू एम्प्लॉयज मीन्स हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो जॉब और ड्यूटीज असाइन करके देते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिलीज दिस assignment of a job should be done in such a manner that the employees most suited for a particular type of job ultimately perform it. मैंने वही बोला कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो वो सर्विस डिपार्टमेंट बोल के काम करेगा और जो भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स है वो रिमूव करने का काम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है. A proper between this ensure a proper match between the ability and the type of job of the employees and subsequent effectively overall performance. Okay, then establishing a reporting relationship. The final step is concerned with the uh, erecting a hierarchical structure and effective communications among the diverse department. This is done by the establishing relationship effectively. This means that every employee should be made aware of whom he was to take order from and prove his accountability. तो establishing reporting relationship में क्या आता है कि हमें हमारा जो भी असाइन किया गया वर्क
वो हमें किसे रिपोर्ट करना है, दैट इज द इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और हमें कौन हमें हेल्प करने वाला है, कौन हमें ऑर्डर्स देने वाला है, दैट द थिंग्स कम्स इन अ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो हमारा मैनेजर जो रहेगा, हमारी रिपोर्टिंग ऑथोरिटी जो रहेगी, हम उसका ही ऑर्डर सुनेंगे और उसको ही रिपोर्ट करेंगे। हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या क्या लॉसेस हुए हैं, क्या क्या प्लान किया है, कितना हमें टारगेट अचीव करना है और कितना हमने किया है, ये सब डिटेल्स हम हमारे रिपोर्टिंग ऑथोरिटी को देते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हमारे प्रोसेस में क्या होता है कि हमें वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स हमारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हमें हेल्प करते हैं या सिमिलर एक्टिविटीज हमें कंसर्न करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हमें वर्क हर हर एक पर्सन को उसके स्किल के बेस पे हमें वर्क असाइनमेंट होता है, और उसके बाद हमें जो वर्क दिया है वो उस वर्क का हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशंस में इंपॉर्टेंस चीजें कौन कौन सी है। तो फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस असाइन अ वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू डाइवर्स एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जनरली जो भी वर्क होता है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है, और एक एक स्टैंडर्ड रहता है, एक जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। तो हर एक चीज का एसओपी होता है। उसी उसी टाइप में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एसओपी होता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सेपरेट ओसीपी होता है। उसके बाद इट इंश्योर दैट द सुटेबल वर्क इज हैंडेड आउट रिपीटेटिवली टू एन एम्प्लॉय हु इज अ गुड परफॉर्म इन हिज फील्ड। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर फील्ड का कोई एक पर्सन है, तो उस पर्सन से हम क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसको एक रिपीटेटिवली जो भी वर्क आता है उस वर्क के लिए उसी बंदे को हम असाइन करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयज। and employees working regularly in a specific area gain an invaluable experience in a long run. Consequently, this leads to a specializations. Means हर एक पर्टिकुलर पर्सन मोर देन 5 to 6 ईयर एक पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर प्रोसेस में काम करता है, तो डेफिनेटली उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशंस। Clarity in working relationship. As discussed before, organization induce the accountability by defining relationship among the employees within the enterprise. तो हम ये अकाउंटेबल करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय का हमारे इंटरप्राइज में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। तो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, दिस इज डन बाय डिफाइनिंग whom an employee is accountable to. In effect, it provides an order flow of information and instructions. Furthermore, this also helps in clarifications of extent of authority, responsibility, and provide for the hierarchy. तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में, तो हमारे इंडस्ट्री में जो भी वर्किंग होता है तो उस वर्किंग रिलेशनशिप में मैनेजर और उसके अंदर वर्क करने वाले लोग, उनकी मेंटेलिटी कैसी है रिलेटेड टू द वर्कशिप और रिलेटेड टू द अपने कलीग के लिए। तो इट इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर गोल्स, और इट इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोसेस, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट क्वालिटी। द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस मीन्स organizations help organizations help in optimum utilizations of financial and human resources. It is not only aid in the proper assignment of job to suitable employee but also keep track that there is no waste of resources and effort due to duplications of work. हमें इंडस्ट्री में काम करते टाइम हमें ऑप्टिमम रिसोर्सेस यूटिलाइज करने हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रहेगा,
हमें कॉस्ट ऑफ रिडक्शन करना होता है, जैसे कि कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको रिड्यूस करना होता है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेस है, जहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे 3 लोग काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम 2.5 में कैसे काम कर सकते हैं, या 2 लोगों के अंदर कैसे वो वर्क फिनिश कर सकते हैं। सो दैट द थिंग्स कवर्ड इन optimum utilizations of resources. Effective administrations and governance. Another important features of organizing is that it ensures that the jobs are clearly defined within an enterprise such that there is a no duplications and wastage. So हमें इंडस्ट्री में क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि आपको वही काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है. So whenever you join to the industry, at that time human resource department will specifically mentions to you you have to do the such a kind of work. So for example we are taking example of banking sector. So बैंक का कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो उन्हें स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको अकाउंट से ही अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है, जैसे कि आपको ऑपरेशन में ही काम करना है, तो वो नॉन ऑपरेशन के वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन है वो ऑपरेशन में है. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. गवर्नेंस मीन्स जो होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट योर वर्क, तो वो गवर्नेंस हमें भी फॉलो करना पड़ता है. लास्ट वन इज अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. असाइनमेंट ऑफ जॉब इज सुटेबल पर्सनल इज एन important step for the organizations. The delegations of job helps in the inductions of creativity in the manager. This happens because with the help of delegations, a manager not only look to reduce the workload but also discover a new way to getting the task done. For example, we have a number of employees and we have to improve his skills. So we are going to uh, discuss with the HR manager or HR person to training of our employees to improve his skills. So that the points covered in the development of personal. So um, a manager not only look or reduce the workload but also discover a new way of getting the task done. तो मैनेजर हमें वर्कलोड ही कम नहीं करवा के देता है, तो वो हमें ट्रेनिंग भी देता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी करवाता है, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, टेक्निकल स्किल होगी, या कुछ टेक्निकल अवेयरनेस हो गए, या डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होगी. सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में ये सब चीज़ें आएगी. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. Organization ensure that the enterprise undertakes a new challenge. As a result, the company grew and diversifies. Growth and expansions means हमारी कंपनी की ग्रोथ और एक्सपांशन ये हमारे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेस पे होगी, या कंपनी का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसकी मार्केटिंग के बेस पे होगी. जैसे कि हमने देखा था 6M मीन्स 6M में हमारा मनी, मेथड, मटेरियल और मार्केटिंग, these are the basic point. So marketing, it is the most important part for growth and expansions of an organizations. So afterward we learn the type of organization structure. तो इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. Okay, we will see this type of organization structure in next lecture. Thank you.